اگر ایک شخص کی آفس میں پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اور وہ سٹریس میں ہے اور اپنے ایموشنز پر نظر بھی رکھے ہوئے ہے، پھر بھی سٹریس سے فری نہیں ہو پا رہا، بس وہ جانتا ہے کہ وہ سٹریس میں ہے، مین انلائٹنڈ کی حالت میں ہے، پر سٹریس سے آزاد نہیں ہوتا جب تک سٹریس کی وجہ حل نہ ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں انلائٹنمنٹ کی حالت میں رہنا چاہیے، لیکن اس سے سٹریس ختم نہیں ہوتا، بس آپ جانتے ہیں کہ آپ سٹریس میں ہیں اور بے بس ہیں کہ کیسے سٹریس ختم ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ سٹریس میں ہیں، اس فکرے پہ غور کریں۔ جو جانتا ہے وہ نہیں ہے نا، کسی کو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سٹریس میں ہے، تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہونا پسند کریں گے، جو دیکھ رہا ہے یا جو سٹریس میں ہے۔ سٹریس آپ نہیں چاہتے نا، لفظوں میں مت پڑے نا، اس کھیل کود میں پڑ جائیں گے تو یہ کھیل کود ان اٹ سیلف آپ کو سٹریس رکھے گا۔ اور میں نے کب کہا کہ آپ کو انلائٹنڈ ہونا چاہیے؟ میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں بجا کہ کسی ایسی حالت کو کہنا ہے کہ جس میں آپ کا جو مائنڈ کا کھیل ہے وہ آپ کو آکوپائی نہ کر رہا ہو، تو اس حالت کو میں کہہ دیتا ہوں انلائٹنمنٹ۔ اب آپ وہ کھیل کھیل رہے ہیں لیکن آئیڈینٹیفائی کہاں پہ ہوئے کھڑے ہیں؟ سٹریس کے ساتھ، جس کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وٹنس ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ کوئی سٹریس میں ہے، کہاں ہوتا ہے سٹریس؟ آپ بتائیں۔ ایک سچویشن ہے، اس سچویشن کو آپ ایک مطلب دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مائنڈ میں چل رہی ہے کھیل ہے نا، ایک انفارمیشن ہے۔ ہاں، مائنڈ کس کا ہے؟ میرا۔ آپ کا مائنڈ ہے، آپ مائنڈ نہیں ہو، تو آپ دیکھ رہے ہو تو آپ آزاد ہو۔ جتنی دیر تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی یہ تھاٹ ہے، آپ ہر وقت آزاد ہو ایکچولی، اگر دیکھنا آ گیا ہے نا، ایک کیپیسٹی آپ کے اندر آ گئی ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اب اگر آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی حالت میں کھیلنا چاہتے ہو نا یہ دنیا کا کھیل، تو کھیلو، وہاں بھی آپ کانفیڈنٹ ہو گئے۔ کانفیڈنس کیا ہے؟ کانفیڈنس یہ ہے کہ آئی نو دا آرٹ، کہ میں جب یہ مجھے چھیڑے گا، زیادہ تنگ کرے گا، تو مجھے پتا ہے میں آنکھ بند کر کے بیٹھوں گا اور اس کو بیٹھ کے دیکھوں گا اور انجوائے کروں گا، سٹریس کو بھی انجوائے کرو گے۔ سٹریس کو بھی انجوائے کروں گا۔ ٹھیک ہے یار، تو ایسا آدمی سٹریس کے کھیل میں جاتا ہے تو جائے، سوال نہیں بن سکتا اس کے پاس۔ جو جانتا ہے کہ سلوشن بھی اس کے پاس ہے، وہ کیوں ڈاکٹر کے پاس جائے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو یوگا کرتا ہے، اس کی کمر میں درد ہے، وہ بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ کمر کے درد کے لیے فلاں ڈاکٹر موجود ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں کون سے یوگا پوزز کروں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ کیا چوز کرے گا؟ جو خود کر سکتا ہے، خود کر سکتا ہے۔ تو اس کو اس طرح کا لفظی کھیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انلائٹنمنٹ، یہ بیداری، روحانی بیداری، ان بڑے بڑے لفظوں کو ٹریپ مت بنائیں، سے ٹچ سٹون بنائیں، مائل سٹون بنائیں، ان لفظوں سے ماورا جائیں، ان لفظوں کو سنیں ضرور، کیونکہ ادروائز آپ دوسرے لفظ سنیں گے، ادروائز آپ وہ سنیں گے جس سے آپ اکتائے ہوئے ہیں، جس سے آپ تھکے ہوئے ہیں۔ ان لفظوں کو سننے سے نہیں روک رہا، ان ویڈیوز کو، اسپریچول بکس کو، مذہبی کتابوں کو پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا، کیونکہ ادروائز آپ یوٹیوب پہ سکرول کرو گے ویڈیوز کو، فیس بک پہ سکرول کرو گے، ٹک ٹاک پہ سکرول کرو گے، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن، زیادہ سے زیادہ شور جو ہے اس کے اندر ڈالو گے مائنڈ کے اندر، اور وہاں شور شرابہ ہوگا جس سے آپ تھکو گے۔ تو یہ لفظ بہرحال آپ کو کچھ مدد تو کریں گے۔ سو اس طریقے سے سوال بنانا تو مجھے پسند آیا، اچھا لگا، لیکن جہاں سے یہ سوال آ رہا ہے نا، میں یہ سمجھنا چاہیے اگر آپ کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ میں جان تو رہا ہوں کہ یہ مائنڈ میں چل رہے اس وقت کے تھاٹس ہیں، اگر آپ جان پا رہے ہیں تو آپ آزاد ہیں۔ اب آپ سٹریس میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو خود کریں گے اور انجوائے کریں گے، اور اس سے باہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سمپل سی بات ہے، میری دیوار صاف ہے، اس پر تصویریں اس وقت بھدی لگی ہوئی ہیں، اور یہ تصویریں بدل جائیں گی کیونکہ میری زندگی بتا رہی ہے کہ اس پہ تصویریں بدلتی رہی ہیں۔ تو کانشیسنس آپ کی زندگی کا وہ بیک گراؤنڈ ہے، اور مائنڈ اس پہ ٹنگی ہوئی تصویریں ہیں۔ کانشیسنس وہ ہے جو دیکھ رہا ہے،
कॉन्शियसनेस वो है जो देख रहा है कि इस वक्त ये दीवार पे तस्वीर टंगी हुई है। वो जब तक उसे चाहेगा, एंजॉय करेगा, जब तक कहेगा तस्वीर चेंज कर देगा। हाँ, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि वो चेंज नहीं हो रही मेरे से। चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप गलत अज्यूम कर रहे हो कि आप इनलाइटेंड स्टेट में हो, तो वो गलत एजम्पशन का मामला है, क्योंकि अभी आप तस्वीर की नज़र से देख रहे हो। तस्वीर कह रही है कि मैं चेंज नहीं हो रही। तस्वीर क्यों चेंज होगी? दीवार से उतार के नीचे भी फेंक देंगे तो तस्वीर तो कहती रहेगी मैं तस्वीर हूँ। मैं कहता हूँ दीवार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उतर गई है तस्वीर तो दीवार के लिए इररिलेवेंट हो गई ना। दीवार अगर वहाँ से खड़ी होकर उसको देखना चाहती है तो देखे, लेकिन वो जानती है तस्वीर उतर गई है मुझसे, मेरा मसला नहीं है, ये ऑफिस मेरा मसला नहीं है। मेरे बस में क्या है? मेरे बस में ये है कि मैं ईमानदारी से वो काम करूं, उसको एंजॉय करूं। अगर उसमें मैं फ्यूचर बहुत सारा इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें पास्ट बहुत सारा इस्तेमाल कर रहा हूं, इन लोगों ने मेरे साथ ये किया, मेरे बॉसेस ने मेरे साथ ये किया, या मैं फ्यूचर में यहाँ हूँगा, ये ओहदा हासिल कर लूँगा, इस ओहदे के हासिल करने में ये बंदा रुकावट है, उसमें फंसे हुए हैं, तो आपको आपका ऑफिस के जो काम है उसको क्वालिटी टाइम दे ही नहीं रहे। वो इन इटसेल्फ स्ट्रेस का बायस बनेगा। इसको हम स्ट्रेस कहते हैं, वो बेसिकली बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेस का सादा सा मतलब ये है, ज़्यादा माजी, ज़्यादा फ्यूचर, थोड़ा सा लम्हा मौजूद। ज़्यादा माजी तो गालिब जो आपके इमोशंस होंगे ना, वो उदासी, मायूसी, डिप्रेशन, दबाव, इस तरह के होंगे। बहुत सा फ्यूचर है तो उसमें फ़िक्रें, एंजाइटी, एंशियसनेस, क्या होगा, वो इस तरह की चीज़ें चल रही होंगी। बैलेंस करने का तरीका जिसमें ये स्टोरी भी ज़िंदा रह जाए, माइंड बॉडी की स्टोरी, और आप भी मौजूद रहें, उसमें हसीन इम्तजाज। ये मेरा लम्हा मौजूद है, इसमें मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगले एक हफ़्ते मैंने क्या करना है। प्लानिंग कर ली, फिर अगले दिन में जो भी काम आ रहे हैं ना, उनके साथ रहते हुए उन कामों को पूरी दिल जमी के साथ, पूरे इन्हमाक के साथ मैंने किया, और फिर उसके बाद जाने दिया। इसमें ये भी होता है ना कि मैंने एक चीज़ प्लान की, अपना एक दिन प्लान किया, उस दिन के मुताबिक मैंने अमल करना चाहा भी, कुछ चीज़ें मैंने कर ली, ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा एक पास्ट चलता आ रहा है, वो भी तो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश। वही तो बेसिक मफरूज़ा है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। बहुत सारा माजी, थोड़ा फ्यूचर, थोड़ा मौजूदा लम्हा, इसका मतलब है आप उदासी, मायूसी की गिरफ्त में हैं। बहुत सारा फ्यूचर, थोड़ा माजी, और थोड़ा प्रेजेंट, इसका मतलब है कि आप एंशियस हैं, एंजाइटिक हैं, फ्यूचर के हवाले से परेशान हैं। बहुत सारा मौजूदा लम्हा, थोड़ा सा माजी, थोड़ा सा फ्यूचर, आप इनलाइटेंड हैं, पीसफुल हैं, क्योंकि आपके सामने इस वक्त का काम है। इस वक्त का काम जो इतना भी हो सकता है कि मैं इस दिन के को उठा के यहाँ पे रखूँ, आप कभी इतना सा काम भी अलर्ट रह के करके देख लें, आपको अपनी क्वालिटी बदलती हुई महसूस होगी। इवन इसमें अगर मैंने पूरे दिन जो प्लानिंग की है वो मैं नहीं भी कर पाया, जिस मोमेंट में अलर्ट हो जाऊँ, उस मोमेंट आप ये तो कर सकते हैं ना, ये तो आसान सी बात है ना। आज आपने स्ट्रेटजी बनाई, कल मैंने ये काम करने हैं, और काम नहीं हुआ, आपने आंखें बंद कर ली, इट्स ओके, मैंने सिर्फ आज का काम करना है। कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता, ह्यूमनली जो पॉसिबल है मैं अलर्ट रहते हुए करूँगा। आप उसको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में ढाल क्यों रहे हैं? आप कल का पूरा दिन भी अभी रख रहे हैं, आप अगले हफ्ते को भी अभी ही सोच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कल मैंने ये प्लान बनाया था, आज मैं इतना ही सिर्फ कर पाया हूँ, कल तो मैंने इतना सोचा था, और इस तरीके से किया तो मैं तो अगले 7 दिन में इतना कर ही नहीं सकूँगा। अब सारा पास्ट भी अंदर डाल दिया, सारा फ्यूचर भी अंदर डाल दिया, वो लम्हा गायब हो गया जिसमें आप जिंदा थे। वो एक ही लम्हा आपके पास जीने को था, वही गायब कर दिया आप। तो आपने ये भी कहा ना अभी कि आप प्लान कर सकते हो अगले पूरे हफ्ते को, बिल्कुल कर सकते हो ना। इस लम्हे में मौजूद हो आप, इस लम्हे का वो एक्ट है। मतलब इस लम्हे एक काम ये हो सकता है कि मैं ऑफिस के लिए बैठा कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, इस लम्हे ये हो सकता है कि मैं अपना स्केच बना रहा हूँ, अगले हफ्ते का रूटीन जो है ना, शेड्यूल जो है ना, वो तय कर रहा हूँ। इट इज़ एक्ट इन दिस मोमेंट।
उसमें बेटर से बेटर अपनी मालूमात के, अपने माजी की हिस्ट्री को सीखते हुए अपने मुताबिक बेस्ट से बेस्ट शेड्यूल बनाएंगे। लेकिन शेड्यूल में अगर आप इसको जी रहे होंगे, इस शेड्यूलिंग को जब आप काम कर रहे हो तब अगर आप इसको जी रहे हैं, इस लम्हे में आप प्लानिंग कर सकते हो। इस लम्हे में रहना ज़रूरी है। इस लम्हे से बाहर कोई एक भी चीज़ नहीं है। जिंदा चीज़, इनलाइटनमेंट जिंदा चीज़ है, ज़िंदगी जिंदा चीज़ है, वो इस लम्हे से बाहर नहीं है। अगर कोई घर की प्रॉब्लम चल रही है और वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, तो उसके साथ कैसे डील किया जाए? वो आप मे भी सॉल्व ना कर सकते हो। सरेंडर। अगर आपके पास श्योरली ये जवाब मौजूद है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, मज़े की बात यह है कि घर के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनके सॉल्यूशंस इतने करीब होते हैं कि वो आपको नज़र नहीं आते। इतने करीब होते हैं कि उतना सादा सॉल्यूशन इतने कम्प्लेक्स ढांचे का कैसे हो सकता है। मुझे एक खातून ने फ़ोन किया कि जी ये मसला चल रहा है, पिछले 3 साल से ये स्ट्रगल चल रही है मेरी माँ के साथ, भाई के साथ, XYZ। मैंने कहा जी अब अगर आप जाते हो, माँ को गले लगाते हो, रो देते हो और कहते हो कि मैं इसमें गलत थी, तो ये सारा एक्ट कितनी देर का होगा? चंद लम्हों का। आप ये करके दिखाओ। मैं कैसे करूं? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। मैंने कहा ये सारे के सारे रेफरेंसेस लाओगे तो आप नहीं कर सकोगे। आपकी ईगो ढहने को तैयार नहीं है। ठीक, अच्छा जी 2-3 महीने वो मज़ीद खपी इसमें, इसी हालत में, और अल्टीमेटली वही स्टेप उठाया और अगले दिन मुझे फ़ोन आया, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ईगो इन्वॉल्व होगी तो ईगो का काम ही यही है कि वो अगर कोई चीज़ सिंपल कम्प्लेक्स है ना, तो उसको कम्प्लेक्सिटी में आगे ले जाए। उसे रिडल सॉल्व करने से मसला है, मतलब है उसे हर वक्त कोई पजल चाहिए सॉल्व करने के लिए। और चीज़ जितनी कम्प्लेक्स होगी उतनी मज़ेदार होगी, उतनी आपकी ईगो स्ट्रांग होगी। देखिए आप बड़े बड़े जो ईगोइस्ट, बड़े बड़े ओहदों पे बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं, कभी आप उनको बैठ के सुने ना टीवी पर, जब वो माशी मसाइल बता रहे होते हैं, तो जिस ज़बान में वो बोल रहे होते हैं, वो बेचारे गरीब लोग जिनके टैक्स से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती। हालांकि माशी मशीनरी हर एक बंदा चला रहा है। इतनी मेरी इनकम है, इतनी मेरी सेविंग है, इतना मेरा खर्च है। एक सिंपल सी मैथ है जो हर बंदा कर लेता है। लेकिन आप किसी एक्सपर्ट माहिर मईशत को सुने, आपको लगेगा कि यार ये इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सोशल सतह पर आप लोग सारे जिंदा रहते हो, लेकिन किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बैठ के सुने तो वो जो पूरा तारीखी पस मंज़र देकर जिन टर्मों में बात करता है ना, वो आपको समझ ही नहीं आती। आम बंदे को समझ, हालांकि वही आम बंदा दोस्तियाँ निभा रहा है, फैमिली निभा रहा है, पूरे मोहल्ले के साथ उसका एक ताल्लुक है, वो जी रहा है। यही सोशल स्ट्रक्चर है। ईगो सिंपल चीज़ों को इतना कम्प्लेक्स क्यों करती है? यही उसकी होने का बहाना है, क्योंकि वो एक्चुअल में है नहीं। सादी में वो होती नहीं है, सादा हालतों में ईगो होती नहीं है। बच्चे की सादा हालत है ना, एक घर में अगर कुछ मसले चल रहे हैं, एक फाइनेंस का मसला चल रहा है, माशी मसला चल रहा है किसी घर के साथ, वो माशी मसला एक 6 साल के बच्चे को ज़रा सा भी मुतासर नहीं कर रहा होता। ही डोंट केयर कौन सी गाड़ी है, कैसी गाड़ी है, कैसा बाइक है, कैसा घर है, ही डोंट केयर। वो केयर करना शुरू कर देगा जब वो खुद बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ईगो को डेवलप कर लेगा। ईगो चूँकि है नहीं और बनी हुई है, तो बने हुए होने के लिए उसे कुछ मसनूई किस्म के मसाइल चाहिए होते हैं। तो वो कम्प्लेक्स इसीलिए करती है ताकि उसके होने की दलील आ सके, वो कंट्रोल कर सके आपके पूरे स्ट्रक्चर को। और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लफ्ज़ में बात कर रहे हैं। देखें, कोई माशरा ऐसा है जिसने ये नहीं सीखा कि कामयाब ज़िंदगी का मतलब है घर, कामयाब ज़िंदगी का मतलब है ज़्यादा पैसे होना, अगर सीखा ही नहीं, तो वहाँ उस माशरे में जो ईगो बन रही होगी वो और तरीके से ऑपरेट कर रही होगी। जिस माशरे में वो ईगो बनती है
उस माशरे को वो रिफ्लेक्ट करती है। आपके माशरे ने इस तरह की ईगो बनाई है। ईगो होना, ईगो का क्रिएट होना मसला नहीं है। नेचर ने चाहा है कि आप ऐसे जियो। नेचर ने ये स्कीम बनाई है कि बच्चे को वो खाली स्लेट के तौर पर भेजती है और साथ पेन देकर भेजती है कि इस स्लेट पर लिखो जो लिखना चाहते हो। फिर एक स्टेज आती है, वो लिखा हुआ अगर लगे उलझा हुआ है, वो एक खूबसूरत कहानी की शक्ल में नहीं लिखा हुआ सिर्फ, फिर उसे एडिट करने का इख्तियार देती है कि ये स्लेट है, ये डस्टर है, उठाओ, इसमें से जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है वो इरेज करना शुरू कर दो। वो फिर इरेज करना शुरू करता है। अगर वो स्मार्ट है तो फिर वो अपनी कहानी को सीधा सीधा सिंपल अंदाज में कम्युनिकेबल बना देता है, काबिल अबलाग बना देता है, दूसरे को सुनाने के काबिल बना देता है। क्या सिंपलिसिटी भी ईगो खुद ही देख लेती है या फिर ये कोई और चीज़ है? ईगो एक स्ट्रक्चर आपका जिंदा रहता है सारे का सारा, जब तक आप फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर है। ट्रेंड हालत में वो आती है, इंतहाई तरबियत याफ्ता हालत में वो आती है, उलझती है। सुलझाना अगर आप जानते हैं तो फिर आप सुलझाते हैं। यानी कि एक खूबसूरत जमालियाती एहसास के साथ भरे हुए हालत में आप सफ़र शुरू करते हैं, फिर उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ पैदा करते हैं, फिर उसको सधाते हैं और डिज़ॉल्व होते होते आप सारी चीज़ें सीधी कर लेते हैं। ये एक इंसान की जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है ना, उसके सफ़र का ये तरीका है। लेकिन अगर आप डम हैं, आपको इस तरीके से बनाया गया है सोसाइटी ने और कंडीशनिंग के असीर हो गए हैं और ये ही नहीं जान पाए, तो फिर आपका जो इख्तिताम होता है वो दर्दनाक होता है। आपकी मौत बता रही होती है आपकी ज़िंदगी का किस्सा। तो अगर मंजिल जो है मौत, विच इज़ मौत फॉर दिस फिज़िकल स्ट्रक्चर, अगर उसकी मंजिल मौत है तो मंजिल बताती है ना कि सफ़र कैसा था। तो मंजिल अगर पीसफुल है ना, तो उसमें अगर मोड़ भी आए हैं, कम्प्लेक्सिटीज़ भी आए हैं, तो भी आपको सफ़र हसीन लगता है। कोई बंदा है ना, मेहनत करता है, बहुत कुर्बानियाँ देता है, कष्ट सहता है, लेकिन आखिर में कामयाब हो जाता है, तो उसे उस कामयाबी से ज़्यादा मोहब्बत उस स्टोरी के साथ होती है, उस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ कि कैसे मैंने इन सारे चैलेंजेस पे काबू पाया। तो ये एक सीधा सीधा सफ़र है।